Good evening, everyone. I think you all have joined the webinar, and I'm delighted to welcome you all to today's webinar on stress management. Today, we have a privilege of learning from some of the best mind in the field. जो भी आपको बेस्ट लगेगा, जो भी आपको बेस्ट दिया जा सकता है, वो स्पीकर्स हमने यहाँ पर जो है बुलाए हुए हैं. एंड टुडे वी हैव द प्रिविलेज. I just have told you that today we have the privilege of learning from some of the best mind in the field who will share their knowledge, their experiences to help us better uh, navigating the stress of the life. Stress, I believe, सभी की लाइफ में थोड़ा या थोड़ा से ज्यादा सभी की लाइफ में आ चुका है या रहने लग गया है. ऐसे में जरूरत पड़ जाती है हमें कि कोई हमको थोड़ा सा गाइड करे, और अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो डेफिनेटली हम इस सिचुएशन से उभर कर आ सकते हैं. एंड टू बिगिन दिस सेशन, इट इज अवर honor to introduce our esteemed guest, Mr. P.P. Singh, who is the former General Manager of Punjab National Bank, for today's webinar. Mr. Singh bring a wealth of experience and insight into high-level leadership and organizational dynamics. 35 साल से ज्यादा की इनका बैंकिंग एक्सपीरियंस है. He has remained very successful as a leader, and please join me in welcoming Mr. P.P. Singh as he inaugurates our webinar and share a few words to set the stage of our discussion. Singh sir. So, good evening to everyone. At the outset, I want to extend my heartfelt thanks to Mr. MP Garg for that insightful introduction and for setting the tone for the today's webinar, which I think will be very engaging and enlightening session. It is indeed a great pleasure to be here today addressing such an esteemed gathering of professionals who are committed to the personal growth and the betterment of our work environment. As we all know, stress is the inevitable part of life. It happens with everyone. No one is left out, especially in today's fast-paced world. Whether it is meeting deadlines, balancing work and family life, or dealing with unforeseen challenges. Speakers who are expert in their respective fields, and who will guide us through effective and tell us the tools to manage stress, how to manage the stress. Ms. Ria Jain, an organizational psychologist, brings with her a deep understanding of how stress impacts our mental well-being and our productivity in the workplace. Her insights into the psychological aspects of stress will no doubt provide us with valuable tools to maintain our mental health and well-being. We also have with us Mr. Sushil Grover. In fact, I know Mr. Sushil Grover for last 32 years. He was my colleague in my erstwhile bank. So I'm also retired now. I retired last year. He has retired this year only. So I know him last 32 years. Mr. Grover, a fitness-focused leadership coach, mentor, and soft skill trainer. Mr. Grover's holistic approach to stress management, which includes physical and mental fitness, will surely offer us practical ways to build resilience and lead a more balanced life. The collaboration between Ms. Jain and Mr. Grover emphasize that managing stress is not just about one aspect of our life, but about achieving harmony between our mental and the physical health. As I inaugurate this webinar, I encourage each one of you to take this opportunity to learn, reflect, and implement the techniques that will be shared today by both of them. Whether you are here to find new ways
to handle stress in your professional or in your personal life for your overall well-being. I would like to extend my heartfelt thanks to Ms. Ria Jain and Mr. Sushil Grover for sharing their expertise with us today. I'm certain that their insight will leave a lasting impact on all of us. And another thing I would like to add that 15 days back, there was another session, webinar was there, which was addressed by both of them. It was really very beautiful one, very effective one. And I'm sure today also, same effectiveness will be there. So with that, Thank I you, sir. declare the webinars on stress management officially open. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your enlightening words. And अब मैं इनवाइट करूंगा विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट बिकॉज जैसे कि अभी सिंह साहब ने बताया कि इससे पहले जो हमारा एक वेबिनार हुआ था वर्क लाइफ बैलेंस पे दैट वाज अप्रिशिएटेड बाय large people, large volume of people, you can say a lot. और अब बारी आती है हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की और इसको भी बहुत ज्यादा सराहा जाएगा। इस बात की उम्मीद इसलिए की जा सकती है क्योंकि रेया जैन जो हैं हमारे साथ जो अब स्पीकर हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और अपार्ट फ्रॉम इट फुल्ली डेडिकेटेड हैं इन वेबिनार्स के लिए, वर्क प्लेस पर कमिटमेंट के लिए। So I will be inviting Miss Ria Jain for saying few words. You can say giving us the theories about the stress management. You can say, and please welcome Ria Jain. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. I am Ria, and today I'm going to take your session. So, how is everyone doing? How is everyone feeling? Can I get some comments in the chat box? How is everyone doing? Can I get some comments before we start? I need some energy before I start this session because this session is going to be full of energy. Can I get some comments fast? How excited are you? Yes. Good. Thank you so much, Jasleen. Thank you so much, Angad. Thank you so much, Simran. Thank you. Thank you so much. I am good. I am really nice. I'm really good. I'm super excited to have you all here. And it's my privilege to have such a beautiful audience with me. Thank you. Thank you so much. Thank you, Meet Singh. Thank you, Rajneesh. Thank you so much, everyone. Thank you so much for this encouragement. Thank you, Abhishek. Thank you. So today we are for the session of stress management. मैं कह सकती हूँ इसको स्ट्रेस मास्टरी। सिर्फ मैनेज नहीं करना है, मास्टर करना है हम दोनों को सब कुछ। सबको हमको स्ट्रेस से ओवरकम करना है, हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओके, सो आप लोग अपने स्ट्रेस से रोज डील कर रहे हैं अपने तरीके से। कभी कुछ सक्सेसफुल हो पा रहा है और कभी कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस सेशन स्ट्रेस फ्री होके सो दैट आप मेरी प्रेजेंटेशन और मेरे सेशन पे फोकस कर सकें। Okay, so give me a chance to do a small 1 minute, 2 minute activity with you. Can we do it? Can I get a guess in comment box so that I can begin with the activity? It's a very simple one. Can I get some guess? Yes, okay. Thank you, Justine. Thank you, Ayushman. Thank you, Jaya. Thank you, Prachi. Thank you, Ayushman again. Thank you. Thank you, Rajneesh. Thank you so much. So we are just gonna do very simple activity. आपको अपनी आईज क्लोज करनी है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। ओके, तो आप स्ट्रेट बैठिए, आईज क्लोज करिए और हमें सिर्फ इनहेल एक्सहेल करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ओके, 3 टाइम्स करेंगे। जब मैं इनहेल बोलूंगी आप सांस लेंगे, मैं एक्सहेल बोलूंगी आप सांस छोड़ेंगे। ओके, गॉट इट? 3 टाइम्स करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और मेरे साथ करेंगे। सो आईज क्लोज, प्लीज सिट स्ट्रेट एंड लेट्स स्टार्ट। इनहेल, exhale, inhale everyone, exhale, once more, inhale, and exhale. You can rub your hands and put on your eyes. I know मैंने थोड़ा जल्दी किया. You can do it slow. This is one of the stress management techniques that we can do.
to overcome stress at any point in time. Okay, so let's start the session. ये सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगी. सबसे पहले यू कैन हैव अ नोट पैड एंड अ पेन विद यू इफ यू वांट टू नोट डाउन समथिंग. एनी टेक्निक आपको नोट डाउन करनी है, यू कैन डू दैट वेरी इजीली फ्रॉम द सेशन. ओके, सेकेंड ये है कि हम सबको बहुत कुछ आता है और हम सब पहले से बहुत कुछ डील कर रहे हैं. हमें हमें ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आती होंगी, बट आई वॉन्ट यू टू बी हियर विद अ ओपन माइंड कि आप सुने और आप समझें, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं, कुछ नया सीखने आए हैं एंड मैं आपके लिए बहुत कुछ नया लाई हूँ. ओके, सो आप ब्रॉड माइंड से अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आप ज्यादा उस चीज को टेक इन कर पाएंगे और आप ट्राई जरूर करेंगे. हमें यहाँ पे ट्राई करना है, हमें यहाँ पे हैबिट बनानी है और हैबिट से ही हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सेशन जो स्टार्ट होगा हमारा एक रिसर्च से होगा, तो थोड़ा सा सुनना पड़ेगा उसमें, बट आई थिंक जब आप वो रिसर्च सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेरा सारा सेशन किस चीज से रिलेटेड होने वाला है और हम मैनेज कैसे करने वाले हैं स्ट्रेस. ओके, सो लेट्स बिगिन. अब हुआ क्या, एक दिन, जस्ट अ लिटिल स्टोरी टाइम. सो एक दिन हुआ क्या, आई वाज सिटिंग एंड आई वाज सर्चिंग समथिंग एंड मैं टेक टॉक के अक्रॉस आई. सो आई वाज ओपनिंग माय यूट्यूब और उसमें मैंने एक टेक टॉक देखी. टेक टॉक एक स्पीच होती है. आई होप एवरीवन नोज व्हाट टेक टॉक इज. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कम एंड स्पीक their experiences and give motivation, etc. So this person on the screen is Kelly McGonigal. Okay, so she is basically a health psychologist. And इन्होंने क्या किया, आते ही अपने टेक टॉक में एक चीज कन्फेस करी. ओके, एक चीज का मतलब उससे कबूल किया या कन्फेस किया. एक चीज क्या कन्फेस किया इन्होंने, I have spent years telling people that stress is bad for their health, but new research has led me to rethink that stance. इस लाइन का मतलब ये है, ये एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है. ओके, तो इन्होंने लोगों को ये बोला कि स्ट्रेस आपकी हेल्थ के लिए बैड है. वो हमेशा यही बोलती थी, बट इन्होंने एक रिसर्च पढ़ी और इस रिसर्च को पढ़ के इनने अपनी थिंकिंग को चेंज करने का ही सोच लिया. अब आप मुझसे पूछोगे रिया ये रिसर्च क्या थी, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी. तो ये रिसर्च थी, इन्होंने एक रिसर्च पढ़ी, उसमें दिस रिसर्च वाज डन ऑन 30,000 अडल्ट्स. ठीक है, और उनका एग्जामिन करा गया कि उनका स्ट्रेस लेवल कितना है उन 30,000 अडल्ट्स का. ठीक है, और वो स्ट्रेस को कैसे व्यू करते हैं, क्या वो स्ट्रेस से डर रहे हैं, उनको हार्मफुल लग रहा है, या वो स्ट्रेस को एंजॉय कर रहे हैं, नॉन हार्मफुल लग रहा है. ठीक है, ये रिसर्च थी. Has everybody understood the research? Do I have to repeat it? Can I get some comments in the chat box? Do I have to repeat it? Should I repeat it or it's understood? Understood. Great. Okay. तो ये हुआ. अब आप शॉक हो जाएंगे इस रिसर्च के रिजल्ट सुन के. एंड लेट मी ऐड वन थिंग, ये रिसर्च 8 इयर्स तक करी गई. तो लॉन्ग 8 इयर्स लॉन्ग रिसर्च है ये. ओके, इट वाज डन इन 2012. आप चेक कर सकते हैं बाद में, यू कैन रिसर्च अबाउट इट. ओके, बट इसका रिजल्ट क्या आया मैं शॉर्ट में आपको जरूर बताऊंगी. सो लेट्स सी द रिजल्ट्स. High stress with the belief that it's harmful increases mortality risk by 43%. इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस था, ठीक है, इन 30,000 में से जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और उन्होंने सोचा कि ये स्ट्रेस मेरे लिए बहुत हार्मफुल है और वो डर गए इस स्ट्रेस से, वो उनको ऊपर हावी हो गया स्ट्रेस, उनका मोर्टेलिटी रेट 43% इंक्रीज हो गया उन लोगों से जिनका स्ट्रेस तो हाई था पर वो स्ट्रेस से डर नहीं रहे थे. इज इट क्लियर? ये हुआ, इस रिसर्च से ये पता चला, इसलिए स्टैंड चेंज हो गया. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. तो एक और रिसर्च थी, लेट मी मेंशन दैट आल्सो. क्या हुआ, पार्टिसिपेंट्स को सिखाया गया, कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, ओके, उनको सिखाया गया कि स्ट्रेस को कैसे नॉन हार्मफुल देखना, डरना नहीं है स्ट्रेस से. जब उनको ये चीज सिखाई गई तो यू वोंट बिलीव उनका स्ट्रेस तो कम हुआ ही, बट एज वी नो, लेट मी मेंशन वन मोर फैक्ट, जब हमारा स्ट्रेस ज्यादा होता है ना तो हमें हार्ट डिजीजेस होते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस, हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं, लेट्स से. ओके, तो उनके में ये पाया गया कि उनकी ब्लड वेसल्स वर रिलैक्स्ड, जबकि उनको बहुत स्ट्रेस था, पर उन्होंने स्ट्रेस को जो व्यू किया, उनको जो परसेप्शन था, जिस तरीके से वो स्ट्रेस को देख रहे थे, वो नॉन हार्मफुल था. सो कैन यू बिलीव कि ऐसा स्ट्रेस से ये इंपैक्ट हो सकता है अगर आप स्ट्रेस को हार्मफुल देख रहे हो या नॉन हार्मफुल देख रहे हो. देयर इज वन मोर रिसर्च आई वुड लाइक टू मेंशन, ये मैंने 5 इयर्स पहले पढ़ी थी. सो देयर वाज दिस पर्सन इन द हॉस्पिटल, ठीक है,
इनके 70 to 80% इनके ब्लॉकेजेस थे एंड डॉक्टर्स ने बोला आई कैन नॉट सेव दिस पर्सन, ही कैन डाई एनी मोमेंट, ठीक है। बट दिस पर्सन, इतने ब्लॉकेजेस होने के बाद भी दिस पर्सन वॉज डिटर्मिन्ड कि मैं ठीक हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। आफ्टर डॉक्टर सेड, वो स्ट्रेस नहीं लिया, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एंड यू नो, यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे शी एक्चुअली सर्वाइव्ड। सो आपका परसेप्शन, आप किस तरीके से स्ट्रेस को देख रहे हैं, वो ही आपको हेल्प कर रहा है स्ट्रेस को मैनेज करने में। वो आपकी हेल्थ को भी ठीक कर रहा है, प्लस पॉइंट, नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ inside also, physiological health also, your health, imagine। तो ये रिसर्च का कंक्लूजन निकला एंड इस वजह से हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने अपना स्टैंड ही चेंज कर दिया। आपने कभी सोचा था इस बारे में? आई डोंट थिंक सो। तो एज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैं एक थ्योरी बस मेंशन करना चाहूंगी, ओके। सो दिस इज हेल्थ माइंडसेट थ्योरी। हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम परसेप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो इस स्ट्रेस माइंडसेट थ्योरी जो एक डॉक्टर आलिया क्रम ने दी है, ठीक है, उसने बोला दो टाइप के माइंडसेट होते हैं रिलेटेड टू स्ट्रेस। एक होता है स्ट्रेस इज डिलिबरेटिंग माइंडसेट, एक होता है स्ट्रेस इज एनहांसिंग माइंडसेट। डिलिबरेटिंग हार्मफुल, एनहांसिंग नॉन हार्मफुल, दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। और ये थ्योरी बस यही कहती है कि स्ट्रेस एनहांसिंग माइंडसेट होना चाहिए। अब आप मुझसे बोलोगे रिया इसका क्या मतलब है और हम ये कैसे करें, हम स्ट्रेस को नॉन हार्मफुल कैसे देख सकते हैं? हमें स्ट्रेस हो रहा है रिया, एम आई राइट? हमें स्ट्रेस हो रहा है, हम उसको पॉजिटिव कैसे देख सकते हैं, राइट? कैसे देखेंगे हम पॉजिटिव? तो आई विल टेल यू व्हाट आई एम हियर फॉर। आई एम हियर टू हेल्प यू, ओके। तो लेट्स सी हम स्ट्रेस को नॉन हार्मफुल कैसे देख सकते हैं। In the next slide, I have a situation written, ठीक है। तो मैं जब अभी नेक्स्ट स्लाइड करूंगी ना, तो एक सिचुएशन आएगी लिखी हुई, ओके। आपको वो सिचुएशन पढ़नी है और अपने आप को सिचुएशन में रख के देखना है, और फिर आई विल आस्क यू व्हाट डू यू थिंक, ओके। सो लेट मी शो यू द सिचुएशन पहले। प्लीज रीड द सिचुएशन एंड आई विल रीड विद यू। You have been given a critical project with a tight deadline, ठीक है। There is heavy pressure to succeed, बहुत प्रेशर है, and you are already managing other responsibilities। अब आप मुझे बताओ कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या सोचते और आपका क्या रिएक्शन होता। कैन आई गेट सम आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स? ये आप इस सिचुएशन में हो ऑलरेडी, ओके, करंटली राइट नाउ। अब आप मुझे बताओ कि आपको इस सिचुएशन में कैसा फील हो रहा है। कौन इस सिचुएशन में पॉजिटिव फील कर सकता है रिया? ये तो नेगेटिव सिचुएशन है, सारी हर जगह से स्ट्रेस आ गया रिया मेरे ऊपर। हाउ विल आई डील विद दिस सिचुएशन? कैन आई गेट सम आंसर इन द चैट बॉक्स? इज एवरीवन स्लीपिंग? वेक अप? नो। हरसिमरन, आई जस्ट वांट टू नो नेगेटिव थॉट क्या आएगा। आप इस सिचुएशन में हो, सबसे पहला थॉट नर्वस, ओके, नर्वस हो सकते हैं। और कुछ? एनीबडी एल्स? Anxiety, stressed, absolutely. Anything else? Anxious, ठीक है। It is difficult to complete negative thought. Tension, absolutely महक, absolutely Jasleen, हर्ष, thank you for your comments। तो मैं आपको दिखाती हूँ आप क्या सोच सकते हैं, देखते हैं क्या आप ये सोच सकते हैं। This project is too much. I am already busy and worried I might fail. इसके अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ सोच रहे होगे, इसके अराउंड चल रहा होगा। कोई पॉजिटिव नहीं सोच पाता, बट आपको सोचना क्या चाहिए और आप उसको रिफ्रेम क्या कर सकते हो। दिस प्रोजेक्ट हेल्प्स मी ग्रो एंड शोज आई कैन हैंडल टफ सिचुएशन। सेटिंग मी अप फॉर दिस इज गुड फॉर माई फ्यूचर सक्सेस। इज इट टफ टू थिंक अबाउट दिस? इट इज। यस और नो? इट इज। क्या आप ऐसे सोच सकते हो इस सिचुएशन में? कांट कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आप सोच सकते हो ऐसा कुछ इस सिचुएशन में? क्या हम ही बेसिकली ना रीफ्रेमिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। हम डेलिब्रेटिंग जो मैंने आपको बताया था, हम उसको एनहांसिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और सिचुएशन लेते हैं, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। आई हैव वन मोर सिचुएशन फॉर यू। मैनेजिंग हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स। टू ऑल माय कंसल्टेंट्स एंड एडवाइजर्स इन द ऑडियंस,
आपके पास ये सिचुएशन बहुत बार आती है, you can unmute and talk to me also, please. Okay, you can unmute and talk to me if you want to. So managing high profile clients is also a very stressful task sometimes for people who handle these kind of clients, right? Can I get some answers? You can unmute and talk to me. Any consultant and advisors do we have here? Do we have here? ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, राइट? ऐसी सिचुएशंस आती ही रहती हैं. चलो, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर, लेट्स प्रोसीड एंड सी कि मे बी आप लोगों का क्या रिएक्शन हो सकता है. मे बी आई एम प्रेडिक्टिंग रॉन्ग, मे बी आई एम प्रेडिक्टिंग राइट. सो लेट्स सी. डीलिंग विद हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स कैन बी स्ट्रेसफुल एंड कुड हार्म माई रेपुटेशन. अगर आप उनके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करोगे तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी. हम ये सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं. क्या सोचना चाहिए? वर्किंग विद हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स इज अ चांस टू शोकेस माय एक्सपर्टीज एंड बिल्ड माय रेपुटेशन. हम ये सोच सकते हैं. वैसे तो मैंने आपको रिफ्रेमिंग एक्सरसाइजेस बता दी, बट यहाँ पर ऐसा कौन है जो कहेगा कि प्रिया ये तो मैं नहीं कर सकती या कर सकता? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट रिया ये हो नहीं सकता. कौन कह सकता है? कैन यू कॉमेंट प्लीज? कैन आई सी सम कॉमेंट्स रिलेटेड टू दिस कि रिया ये बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत मुश्किल है. रिया, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम ये नहीं कर पाते हैं. कौन ऐसा है जो जिसके दिमाग में ये आया? इट इज डिफिकल्ट, यस इट इज. एक्सपीरियंस एंड स्किल्स हेल्प, ओके, दे डू. बट फिर भी कुछ सिचुएशन आती होगी जिसमें आपका फर्स्ट थॉट तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं. जो मैंने सेकंड स्टेटमेंट दी है, किसी का क्या फर्स्ट थॉट ये कभी आ सकता है? इज इट इजी? एक्सपीरियंस एंड यस, नो. एक्सपीरियंस तो आई अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, बट क्या ये बहुत इजी है? नो. नो. जया सेज नो. हरसिमरत सेज नो. Always negative thoughts. Karan says always negative thoughts. No, no, nope, not easy. Okay, so do you want me to help you with this? अब आएगा रियल प्रेजेंटेशन, रियल सेशन. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे कर सकते हैं. So are you ready? Tell me that. Now the session begins and now I will tell you the techniques. Are you ready for amazing? And ये बहुत innovative techniques हैं. आपने सुनी होगी या नहीं, I don't know, but they truly are useful. So are you ready? Can I get more yes? ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगी. I want more yes, please. Yes, yes, yes. Wow, wow. Angad, Mehek, Angad, nice. Karthik, Harsh, Meenu, thank you so much. Thank you so much. We are moving forward and as fast as possible. Let's go. ये करने के लिए आपको क्या करना है? Be patient, सुनना आराम से, समझना, ओके, एंड मुझे बताना कि आपको कैसी लगी ये टेक्निक. ओके, लेट्स गो. ओके, सो वी हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करती हूँ फिर समझते हैं. हॉर्मेटिक स्ट्रेस एक्सपोजर है एक. अब ये क्या है? आई डोंट नो किसी ने सुना है कि नहीं, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो हॉर्मेसिस करके एक चीज होती है, ठीक है, वो होता है लो डोज स्ट्रेस देना, लो डोज स्ट्रेसर्स. अब ये क्या है? ये टेक्निक एक्चुअली में आपको स्ट्रेस देगी. ओके, ये स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रही, बट ये आपको हेल्प करेगी बड़े स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए. रिया कैसे? एग्जांपल्स लेते हैं. कोल्ड एक्सपोजर लिखा है इसमें, तो आप सबने सुना होगा आइज वाटर बाथ, आइज वाटर चैलेंज, आइज बकेट चैलेंज. सुना है सबने? इट्स अ ट्रेंड, राइट? ट्रेंड है ये तो सबने सुना होगा. हाँ, सुना है, रजनीश ने सुना है. इट्स अ ट्रेंड, बट इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेंड एंड इट्स नॉट जस्ट एन एक्टिविटी. इट इज समथिंग दैट इंप्रूव्स योर हेल्थ ऑल्सो. ये टेक्निक ब्लड वेसल्स रिलैक्स करने में हेल्प करती है, हार्ट डिजीजेस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, राइट? बट नॉट दैट. अब होता क्या है, हम जब आइस बकेट चैलेंज कर रहे हैं, इतनी आइस है, हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, टॉलरेंट बनाना पड़ता है. ठीक है, स्ट्रेस है. स्ट्रेस क्या है? आइस. ठंडा लग रहा है हाथ पे, ठंडा लग रहा है बॉडी पे, राइट? तो ये जो स्ट्रेस है, ये छोटा सा स्ट्रेस है ना, हमारी लाइफ का कोई बड़ा स्ट्रेस तो है नहीं. तो ऐसे स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज, छोटी छोटे डोजेस अगर हम स्ट्रेस के अपनी लाइफ में दें अपने आप को, सो व्हाट विल हैपन कि इस स्ट्रेस को डील करना अगर आप सीख जाते हो, तो आप अपनी लाइफ में, ऑफिस में, जो आप फैमिली, जो भी आपको स्ट्रेस, जो बड़े स्ट्रेस आपको हो रहे हैं, आप उसको डील करना सीख जाओगे.
more tolerant, more resilient, more capable of handling so many big stresses. ओके एक और एग्जांपल इस स्ट्रेस एक्सपोजर का आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग. मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहाँ पे पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, बट लेट मी टेल इट टू यू. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एट लीस्ट 12 to 14 hours ऑफ कंप्लीट फास्टिंग विदाउट ईटिंग एनीथिंग. तो जनरली इसका आप ये कर सकते हो कि जैसे 9 AM in the morning to 6 PM in the evening you eat everything like something healthy, something good. ये ड्यूरेशन में आप खा रहे हैं. ओके अब जब 6 PM to morning 9 PM you eat nothing. That's fasting. That's 12 to 14 hours of fasting and that is intermittent fasting. Okay. अब ये भी आपको हेल्प करता है. आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस क्या दे रहे हो कि मैं खा नहीं सकता, मैं खा नहीं सकती, राइट? छोटा सा स्ट्रेस है, बट ये स्ट्रेस आपको बड़े स्ट्रेस को डील करने में हेल्प करेगा. तो ये जो टेक्निक है ना वो आपको स्ट्रेस दे रही है और आपको केपेबल बनाती है कि आप बड़े स्ट्रेस को डील कर पाओ. Did it make sense? Did it? Yes or no? Did it make sense? Any questions that you want to ask? Please unmute your mic and ask me. सिर्फ मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा, मेरे को सामने से सुनने का भी बहुत मन कर रहा है. So can I get some person to interact? Does anyone want to interact? Anyone? Yes. अच्छा, you understood? Everybody understood? एक और होता है ट्रेनिंग. हम जब जिम जाते हैं हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर, हम वेट्स उठाना, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग फॉर सम टाइम ड्यूरेशन. हम अपने आप को स्ट्रेस देते हैं बहुत हैवी वेट उठा के, राइट? वो स्ट्रेस है, छोटा सा स्ट्रेस है, वो भी आपको हेल्प करता है. लो डोज स्ट्रेस है, आपको हाई डोज जब आपको स्ट्रेस का आएगा तो आपको केपेबल बनाएगा, हेल्प करेगा आपको. डिड इट मेक सेंस? ओके ग्रेट. तो ये लो डोजेस हेल्प करते हैं आपको बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रेस को डील करने के लिए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक दे कैन अनम्यूट देयर माइक एंड स्पीक. ठीक है, until then I'm going to the next technique which is 90-20 rule. ये रूल क्या कहता है? 90-20 रूल का मतलब है 90 minutes 20 minutes रूल. क्या कहता है? आप हमारी लाइफ में बहुत एक्टिविटीज होती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हमें फुल पावर लगानी है, फुल एनर्जी लगानी है, फुल मेहनत करनी है. ठीक है, पूरी मेहनत चाहिए, पूरा एनर्जी चाहिए कि बिल्कुल एग्जॉस्शन का लेवल आ जाए. तो हमें करना ये चाहिए कि फर्स्ट 90 मिनट्स आप वो एक्टिविटीज करें जिसमें आपका फुल स्ट्रेंथ लगना है, फुल हिम्मत लगनी है, फुल दिमाग लगना है, फुल डिसीजन मेकिंग, फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ फुल 90 मिनट्स का ड्यूरेशन. फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स यू विल टेक रेस्ट. अब रेस्ट हो सकता है कुछ मत करो, बैठ जाओ, या आप ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिसमें आपका ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही हो. यू कैन रिलैक्स एंड डू दैट एक्टिविटी. यू कैन डू दैट. इससे होगा क्या रिया? इससे ये होगा कि वो जो 20 मिनट्स है ना आपकी एनर्जी रिकवरी में लगेगी. आपने जो इतना 90 मिनट्स में जो काम किया है वो नेक्स्ट 20 मिनट्स में यू विल रिकवर दैट एनर्जी. एंड फिर हम नेक्स्ट उसके जो 90 मिनट्स आएंगे यू विल गिव योर बेस्ट अगेन, क्योंकि एनर्जी रिकवर हो गई. अंडरस्टूड? 90-20 रूल. कभी कभी क्या होता है ना, हम कोई काम कर रहे होते हैं, शुरू में तो हम बहुत अच्छे से करते हैं, लास्ट में आते आते हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम थोड़े वीक हो जाते हैं, ठीक है, थक जाते हैं. अगर कोई 3 आवर्स की एक्सरसाइज है, लेट्स से आपको कोई काम है जिसमें 3 आवर्स लगने हैं, ओके, तो आप क्या करोगे? 1.5 आवर 90 मिनट्स लगाओगे, आप अपना फुल ऑन काम करोगे. गिव अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स, देन वर्क अगेन 90 मिनट्स. 3 आवर्स का काम कंप्लीट हो जाएगा आपका, राइट? एंड पूरी एनर्जी के साथ होगा. नो मिस्टेक्स, नो स्ट्रेस, नो नथिंग. ये टेक्निक्स जो है ना, ये ट्राई करने वाली टेक्निक्स है. मैं ये नहीं कह सकती कि इट विल वर्क फॉर हर्ष, इट विल वर्क फॉर हरसिमरत. मैं ये नहीं कह सकती. मैं आपको कह सकती हूँ कि प्लीज ट्राई, मेक इट अ हैबिट. अपने काम में आप जब भी कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं ये टेक्निक यूज करके देख सकता हूँ जो रिया ने मुझे बताई थी, go ahead, try it. Understood? I hope it was fun. Let's go to the next technique. Yes, ma'am. Empty chair technique. अब as I am a psychologist,
हम काउंसलिंग करते हैं, और काउंसलिंग में हम एम्प्टी चेयर टेक्निक सेशंस में यूज करते हैं। तो उसमें काफी, इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन थिंग दैट्स डन इन कपल ऑफ सेशंस, ओके। बट व्हाई हैव आई ब्रॉट इट हियर? अब मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि आप लोग ये खुद भी कर सकते हो। कैसे स्ट्रेस कम होगा? कैसे रिया? ये दो चेयर्स आपको दिख रही हैं। लेट्स से यू आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट चेयर एंड आपके सामने वो राइट चेयर है जिसपे कोई नहीं बैठा हुआ है अभी। आप स्ट्रेस्ड हो, टाइट डेडलाइन है, टाइट सब कुछ है, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा है। आप स्ट्रेस्ड हो, आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने अपनी प्रॉब्लम बोली। इज एवरीवन विद मी? समझना बहुत जरूरी है इस टेक्निक को, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे। इज एवरीवन विद मी? महक इज विद मी? यस मैम। ओके ग्रेट। तो आप लेफ्ट पे बैठे हुए हो, आपने अपना स्ट्रेस बता दिया, ओके। अब सामने नोबडी सिटिंग, करना क्या है? आपने अपने चेयर से अपनी प्रॉब्लम बताई, गेट अप, गो टू दैट फ्रंट चेयर एंड सिट देयर। नाउ यू आर ओनली द वन जो इस चेयर वाले पर्सन को सोल्यूशन देने वाले हैं, एंड इट्स यू। इमेजिन योरसेल्फ कि आप ही हो जिसको सोल्यूशन भी देना है। अब आप प्रॉब्लम नहीं हो, अब आपको प्रॉब्लम ना, आप नहीं हो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऑन द अदर साइड यू आर द सोल्यूशन गिवर। अब आप सोल्यूशन दोगे। इससे क्या होगा? सेल्फ बेस्ड। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपको इस चीज का सोल्यूशन किसी और को देना था। लेट्स से अगर आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, यू आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट, देन यू कम ऑन द राइट एंड इमेजिन कि सामने वाला जो आपका पर्सन है उसको है प्रॉब्लम, आपको नहीं। लेट्स से आपका फ्रेंड है, लेट्स से आपका कोई कजिन है जिसको प्रॉब्लम है, आप उसको सोल्यूशन बता रहे हो। इनैक्ट, इसको इनैक्ट, इसको एक ड्रामा कह सकते हो, इसे इनैक्टमेंट कह सकते हो। इनैक्ट करो और सोल्यूशन सोचने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, किसी और को स्ट्रेस है बट आप उसको सोल्यूशन बताओगे। ये बहुत तरीके से करा जा सकता है। लेट्स से आप अगेन लेफ्ट चेयर पे बैठे हुए हो एंड यू से योर प्रॉब्लम एंड इमेजिन जो आपके सामने बैठा हुआ है ना इज समबडी जिसकी आप सारी बातें मानते हो ब्लाइंडली। maybe you have a friend, maybe you have a cousin, your parent, somebody जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए इस पॉइंट इन टाइम पे। आप इमेजिन करो वो आपके सामने बैठे हुए। नॉट एवरीबडी इज अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर यू, है ना, ये हम सबको पता है। कुछ सिचुएशंस, कुछ सोल्यूशंस हमें खुद ही लाने पड़ते हैं, हमारे पास लोग नहीं होते हर टाइम, राइट? तो यहाँ पर जो टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आप सब खुद ही कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है फिर। अगर आप ट्राई करो, ऑल यू कैन डू, राइट? तो मैंने आपको क्या बताया कि आप किसी को इमेजिन करिए जो आपको प्रॉब्लम बता सकता है, जो सोल्यूशन आपको बता सकता है उस प्रॉब्लम का, राइट? एक और तरीका है, बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट? एक और तरीका आया मेरे माइंड में, ओके। आप हो अगेन लेफ्ट चेयर पे बैठे हुए हो, इज एवरीवन विद मी? मैं बोर तो नहीं कर रही किसी को? इज इट इंटरेस्टिंग? इज इट इंटरेस्टिंग? यस मैम। या तो मैम नहीं हुआ, मुझे रिया कह सकते हैं, ओके। तो लेट्स इमेजिन, आप इमेजिन करो कि मैं हूं, ठीक है, जैसे आप हो या मैं हूं, हम 10 years बाद क्या होंगे और हम अभी क्या हैं। लेट्स से यू आर 20 एंड देन आफ्टर 10 years यू विल बी 30, राइट? आप 40 के हो, आप 10 years बाद 50 के हो जाओगे। वो उसको इमेजिन करके आप सोचो कि मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे क्या बोलेगा, मुझे क्या बोलेगा मेरा फ्यूचर सेल्फ अगर मैं उसको ये बताऊं कि मेरी ये स्ट्रेस है। मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे क्या बोलेगा? ट्राई इमेजिनिंग दैट। यू विल गेट सोल्यूशन बट यू हैव टू ट्राई, ठीक है? एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, फोर्थ टाइम होगा। एंड इफ यू नीड हेल्प आई एम हियर। कूल? तो ट्राई करो, ये मत बोलो कि ये नहीं हो सकता। नॉट दिस एटीट्यूड, इस एटीट्यूड से आप कोई भी टेक्निक नहीं कर पाओगे। Try. I am not just here to speak again, as I say. I want to help you. I want you to try this activity. Thumbs up? Thumbs up? Great. Please repeat it again. Okay, I can. Right. Empty chair technique, fast repeat करती हूँ थोड़ा. You are sitting on the left chair, Harsh, and आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, ठीक है, जो आपको स्ट्रेस दे रही है, ओके। सामने जो बैठा हुआ है, ठीक है, आप अपनी चेयर में बैठे हो, अपनी प्रॉब्लम बता दी। यू विल गेट अप एंड गो टू द फ्रंट चेयर,
जो आपके राइट में, इस इमेज में जो राइट में दिख रही है वो आपके फ्रंट में होगी। ओके, आप जाके आप ये इनैक्ट करोगे कि आप ही वो जो इस सोल्यूशन का प्रॉब्लम बताओगे, आप ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो। जस्ट एन enactment to help yourself get the solution to the problem and reduce stress. Did you understand, Harsh? Let me get a yes and I'll proceed. And I'll proceed. Great. Thank you. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत तरीके होते हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के, बट आई हैव लेस टाइम, सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट वन, स्ट्रेस इंड्यूस्ड माइंडफुलनेस। पहले तो मैं ये बता दूं माइंडफुलनेस क्या होता है। माइंडफुलनेस इन ब्रीफ क्या होता है, आप एक ही एक्टिविटी पे फोकस्ड हो, आपका कहीं और माइंड नहीं जा रहा है। इससे क्या होता है, फोकस तो हेल्प इंक्रीज होता ही है, फोकस करने में तो हेल्प करती है ये टेक्निक, पर आपका स्ट्रेस कम करने में भी करती है। तो यहाँ पर जो दो टेक्निक्स लिखी हैं, इसमें से एक हम कर चुके हैं शुरू में, 3 ब्रेथ रीसेट। हमने 3 बार इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल किया था, वो एक टेक्निक थी। डिड इट हेल्प यू? पहली बात तो डिड इट हेल्प यू? आई नो आई डिड इट प्रीटी फास्ट, यू कैन डू इट स्लो एट योर ओन पेस, राइट? बट डिड इट हेल्प? इट डिड, एब्सोल्युटली इट विल। अब क्यों हेल्प करती है रिया, कैसे हेल्प करती है? आप जब ब्रीथ कर रहे होते हो ना, आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा, आप, मैं स्ट्रेस में थी, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं सोच रही हूँ, ओ नो नो, राइट, ये मेरे से नहीं हो रहा, आई फेल आई फेल। अब एकदम से मैं रुक के, पॉज होके, स्ट्रेट बैठ के, आईज क्लोज करके 3 ब्रेथ रीसेट करूं, क्या होगा? मेरी जो स्ट्रेस साइकिल चल रही थी वो ब्रेक हो जाएगी। मैं अपने स्ट्रेस के बारे में एटलीस्ट उस टाइम तक भूल जाऊंगी, और जब मैं भूल जाऊंगी मेरा स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और मुझे शायद कोई सोल्यूशन आ जाए माइंड में, या मेरा स्ट्रेस में थोड़ा काम डाउन हो जाऊं, जिससे कि मैं स्ट्रेस से ढंग से डील तो कर पाऊं, हरी में कुछ ना करूं। मेरी स्ट्रेस साइकिल ब्रेक हो रही है क्योंकि मैं किसी और चीज पे फोकस करने लग गई, अपनी ब्रीदिंग पे। ओके, एक और है सेंसरी ग्राउंडिंग। सेंसरी ग्राउंडिंग से वर्ड आता है सेंसेस, ठीक है? हमारी सेंसेस क्या होती हैं? आईज, सी, नोज, स्मेल, माउथ, टेस्ट, ईयर्स, हियर, टच, स्किन, राइट? करना क्या है? अगेन स्ट्रेस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं, अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपने लोगों को सुना होगा, गाने सुनते हैं लोग, ईयर्स का यूज कर रहे हैं, साउंड डिफरेंट आ रही है, स्ट्रेस साइकिल ब्रेक हो रही है, राइट? अब आप क्या कर सकते हो? यू आर प्रिटी स्ट्रेस्ड, आप, कुछ लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि चेंज योर लोकेशन, चेंज योर एनवायरमेंट फॉर सम टाइम, स्ट्रेस कम होगा, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपका आईज को दूसरा एनवायरमेंट देखने को मिलता है, स्ट्रेस कम होता है। दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही, एज आई सेड, ठीक है? सब कुछ रिसर्च बेस्ड है, इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई आई एम हियर टेलिंग यू, एंड आई वांट इट टू हेल्प यू, माय ऑडियंस। ओके, ऐसे ही आप कुछ डिफरेंट टेक्सचर टच करेंगे, कुछ डिफरेंट सॉफ्ट या हार्ड शार्प टेक्सचर टच करेंगे उस टाइम पे जब आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, आपकी स्ट्रेस साइकिल ब्रेक हो जाएगी। लोग बहुत खाते हैं स्ट्रेस में, क्यों? आई नो कुछ लोग बिंज ईटिंग करते हैं, विच इज रॉन्ग, बट अगर आप थोड़ा सा कुछ खा लो तो आपका स्ट्रेस साइकिल ब्रेक होती है। आपकी बॉडी को ना डिफरेंट टेस्ट मिलता है, आपके टंग को डिफरेंट टेस्ट मिलता है, टेस्ट बस्ट को डिफरेंट टेस्ट मिलता है, बड्स को, तो उससे स्ट्रेस साइकिल ब्रेक होती है। क्या है ना, आपका माइंड दूसरी तरफ जाता है। ठंडा पानी पियो, अपने आप स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। टंग को मिल रहा है टेस्ट, टेस्ट हो रहा है ना, या टच कर लो, अब आप टच करोगे अपनी स्किन से, अगेन ठंडा पानी टच करोगे अपनी स्किन से, व्हाई नॉट लिम्का विद ब्लैक सॉल्ट, चॉकलेट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, चॉकलेट खाएं, यस, टेस्ट चेंज होगा। कोई भी सेंसेस यूज करो, कोई भी सेंसेस किसी भी तरीके से यूज करें उस टाइम, कोई डिफरेंट चीज करें। माइंडफुलनेस कैसे हुआ? ये आपने अपनी एक सेंस यूज करी, आप खा रहे हो तो आप खा रहे हो, आप गाना सुन रहे हो तो आप गाना सुन रहे हो, एक ही एक्टिविटी कर रहे हो, माइंडफुलनेस। So these were the techniques I have for you today, and I wall on. How did you like it? पहले मुझे ये बताओ कैसी लगी ये टेक्निक्स? Can I get some answers? I like to listen to music. Great, great. अब एक और एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया जब मैंने म्यूजिक का नाम सुना। कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब उनको स्ट्रेस होता है वो सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं। देखो, सैड सॉन्ग सुनना गलत नहीं है,
ओके, सैड सॉन्ग सुनना बिल्कुल गलत नहीं है, आप सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं सैड वाले। बट जब आप स्ट्रेस्ड हो, आप सैड सॉन्ग क्यों सुन रहे हैं? आपको और स्ट्रेस हो जाएगा। ट्राई वॉचिंग सम कॉमेडी मूवी, ट्राई लिसनिंग टू सम ग्रेट इन एक्साइटिंग सॉन्ग्स, एनर्जेटिक सॉन्ग्स। सिद्धू मूसेवाला, ओके, पंजाबी, ओके, हनुमान चालीसा इज द बेस्ट, इट इज। Spirituality helps very much, very much. Yes. मैम, अगर हार्ट ब्रोकन हो तो, अगर आप हार्ट ब्रोकन हो तो आपको उससे दूर करने के लिए आप अच्छे सॉन्ग सुनोगे। आप कुछ अच्छा, आप मेडिटेशन करो, कुछ और सॉन्ग सुनो। डाइवर्ट योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस माइंडफुलनेस से क्या है कि आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो। आई कैन सी नेम्स ऑफ डिफरेंट सिंगर्स हियर, ग्रेट, nice. So I will end my session. I'm taking a lot of time now. So I will end my session here only. And I hope you loved the techniques that I told you. I hope it is new for you. अगर मैं आपके लिए new knowledge लाई हूँ यहाँ पे, तो it is great. Yes. तो इट इज ग्रेट टू सी दैट आप सबने इतना एंगेजमेंट दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना मोटिवेशन दिया। आई लव्ड इट। बट वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से इज आई वांट यू ऑल टू ट्राई दीज टेक्निक्स। मैं अपना मेल आईडी मेंशन करूंगी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, एंड आई वांट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर आप ये ट्राई करें, आई वांट फीडबैक ऑफ एवरीबडी हियर, सो दैट आई कैन नो दैट आप लोगों ने ट्राई किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू कम इन टू दिस सेशन। You have to try it, okay? Thank you so much, everyone, for listening to me. It was a pleasure. Thank you so much. Thank you so थैंक much. यू रिया, थैंक यू रिया। इट्स रियली वंडरफुल सेशन। और आपने जिस तरीके से साथियों, आपने इनकी एनर्जी देखी, इनका ओरा देखा, इनका चीयरफुलनेस देखा। अगर इनमें इतना ओरा है, इतना चीयरफुलनेस है, और यकीन मानिए एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है, और एक छोटी सी चीज चाहिए इन्होंने, वो तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। और वो चीज चाहिए ये कि आप ट्राई जरूर करें। अगर ट्राई भी नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चीजें मिस आउट हो जाएंगी, जो हम लोग बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। और इतने ही अच्छे स्पीकर एक और हैं हमारे पास। नाउ इट इज माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस मिस्टर सुशील ग्रोवर, who is having more than 31 years of experience in banking, in leadership, in soft skills, number of qualities he is having with us, and deep well knowledge of this webinar also. एंड मजे की बात यह है कि जितनी टेक्निक्स बताई हैं रिया ने, उससे डिफरेंट टेक्निक्स इनके पास हैं, और वो भी बहुत अच्छी हैं। और आई बिलीव कोई ना कोई टेक्निक आपके पास तो काम आएगी आएगी, और कोई ना कोई तो आपका पर्पस सर्व करेगी करेगी। सो विद दिस आई विल बी रिक्वेस्टिंग मिस्टर सुशील ग्रोवर टू प्लीज कम ऑन द dais, you can say, or join us and give the inputs whatever he is having with him. Grover ji, please. सर ऑडियो वीडियो इज ऑल राइट? 100% all right. चलो, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू एवरीवन। सो सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिनको मालूम है कि मुझे स्ट्रेस है, और एक वो जिनको मालूम ही नहीं कि मुझे स्ट्रेस है। अभी हमारे पास तकरीबन 50 जने जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि जिससे ये पता लगे कि आज हम यहाँ तो बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तनाव है या नहीं है। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जस्ट अपना दाहिना हाथ जो है, आप अपना दाहिना हाथ ऐसे अपने गले पर रखिए, और अगर गर्दन गरम और हाथ ठंडा तो से यस इन द चैट बॉक्स। अगर मैं रिपीट करता हूं, अपना दाहिना हाथ आप गर्दन पे रखिए, और अगर गर्दन गरम और हाथ ठंडा तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, अदरवाइज नो लिख सकते हैं। यस, क्विक रिस्पॉन्सेस प्लीज। Shall I repeat?
Yes, responses please. चलो, एनीवे, अगर आपकी गर्दन गर्म है और हाथ ठंडा है तो इट मीन्स कि आप तनाव में हैं, आपको मालूम ही नहीं कि ये तनाव है या नहीं है। ये कहाँ से लिया गया? ये आप देखिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस, एक बुक है डॉक्टर उमेश शर्मा की। उस बुक में इसकी फिलॉसफी भी बताई गई है कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। वो फिलॉसफी क्या है कि एक बार जो है शंकराचार्य जी जो साउथ से नॉर्थ में आए, और यहाँ पे नॉर्थ में एक बहुत जाने माने पंडित थे जिनका नाम था मंडन मिश्र। तो दोनों में मंडन मिश्र की उम्र थी 56 साल और शंकराचार्य जी की उम्र थी 18 साल। तो दोनों में एक शास्त्रार्थ हो गया, और उस शास्त्रार्थ में ये डिसाइड करना था कि शास्त्रार्थ कौन जीतेगा। तो मंडन मिश्र की वाइफ जो भारती थी तो वो जज बनी। तो ऐसा ना लगे कि भारती जो है वो मंडन मिश्र की वाइफ है तो उसमें पार्शियलिटी करे, तो वो बाग में गई और वो 2 फूल मालाएं ले आई। उसमें फूल मालाएं, एक माला उसने शंकराचार्य के गले में डाली और दूसरी माला उसने मंडन मिश्र के गले में डाली। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ और ये डिसाइड हुआ कि जिसकी माला पहले सूख जाएगी तो वो शास्त्रार्थ में हार जाएगा। तो देखा गया कि धीरे धीरे मंडन मिश्र की जो माला थी वो धीरे धीरे सूखती गई और शंकराचार्य की माला थी वो धीरे धीरे और निखरती गई। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा सबसे पहला जो असर होता है वो हमारी गर्दन पे होता है, कि जब हमारी गर्दन गर्म होनी शुरू हो जाएगी तो फूल सूखने शुरू हो गए। तो साथियों, जो हमारी जो विजडम है, एंशिएंट विजडम बहुत ही रिच है, और आज मॉडर्न साइंस में मुझे आज तक नहीं पता था कि कोई ऐसा पैमाना है जिससे कि हम ये नाप सकें कि हमारा स्ट्रेस है या नहीं। अब स्ट्रेस अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें आपका क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं स्ट्रेस के? कई तो स्ट्रेस के रीजन होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल रीजंस, कि अब मेरे पास फाइनेंशियल रीजंस हैं, वो अलग अलग फाइनेंशियल रीजंस हैं। कोई कहता है कि हाँ जी मेरा जो अगर उसकी इनकम 10,000 है तो मेरा गुजारा नहीं होता। कोई कहता है कि मेरी 5 लाख है तो उसका गुजारा नहीं होता। तो उसमें फाइनेंशियल रीजंस क्या हैं? तो अगर सपोज एक तो ये होता है कि 10,000 से गुजारा नहीं हो रहा, मीन्स मेरा 12,000 खर्चा है, तो 2,000 मैं किस में आ जाऊंगा? मैं डेट में आ जाऊंगा, मैं उधार में आ जाऊंगा। और अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है और मेरा 6 लाख रुपए खर्चा है, तब भी मैं उधार में आऊंगा। तो या तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, या तो आपको वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत है। और अगर आप अच्छे से वेल्थ मैनेज कर रहे हैं तो तब आपको सेकंड है अपनी इनकम को इंक्रीज करने की जरूरत है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। हमारी जॉब परफॉर्मेंस में जो है इसका बहुत फर्क पड़ता है, कि वहां पे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाती है। फैमिली में कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे हमें क्या है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो वो कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। बच्चों पे इसका असर बुरा होता है। कई बार अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे हैं तो बच्चे सहम से जाते हैं। तो बच्चे सहम से जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि बच्चों पे क्या असर हो रहा है। लेकिन बच्चे अपना तनाव जो है वो उन पे तनाव हो रहा है। फिर हमारी कई बार स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं इसकी वजह से, कि ये हमारा फाइनेंशियल रीजन से। और कई बार हमें यही नहीं पता लगता कि अगर हम फाइनेंशियल अगर मेरी कम है तो इनकम बढ़ाने का भी कोई स्कोप हो सकता है। यस साथियों, इनकम बढ़ाने का भी स्कोप हो सकता है। अगर मैं 9 से 5 अगर करता हूं तो मेरा सर्वाइवल होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मैं शाम को 5 बजे से लेके रात को 9 बजे क्या करता हूं। इससे मेरा डिसाइड करता है कि मेरा फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। तो अगर आप 9 से 5 जॉब कर रहे हैं तो ये देखिए कि आप शाम को 5 बजे से 9 बजे तक क्या कर रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसे इंप्रूव हो सकता है। फिर आ जाता है कि कईयों का फाइनेंशियल तो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनहेल्दी रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है उनको तनाव है। रिलेशनशिप में अगर तनाव होगा, अगर मेरा तनाव है तो अगर मैं जॉब पे जाऊंगा तो मेरा वहां पे मन नहीं लगेगा, मुझे मन करेगा कि मैं छुट्टी ले लूं। मेरा वहां परफॉर्मेंस कम होगी तो मेरा हर सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं मन मार कर जो है ऑफिस जाऊंगा। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ेगा।
कन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। इसकी वजह से अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो हमारा जो है वो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। मैं फाइनेंशियली जितना मर्जी वेल्दी हो जाऊं, लेकिन अगर मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, चाहे ऑफिस में बॉस के साथ, कलीग के साथ, या मेरे घर में स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अगर मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो वो फाइनेंशियल वेल्दीनेस किसी काम की नहीं है। और आप इसी वजह से जो रिलेशनशिप में अगर सपोज वो हेल्दी ना हो पाना, वो फिर हमारा डिपेंड क्या करता है, रिस्क जो है, डाइवोर्स के रिस्क जो बढ़ जाते हैं। आज से अगर मैं देखूं 20-30 साल पहले डाइवोर्स का शब्द जो है ये हम सुन भी नहीं सकते थे घर में, लेकिन आज की डेट में चाहे वो 1 महीना मैरिज हो, 3 महीना मैरिज हो, 1 साल मैरिज हो, आप सब ने अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि उसका डाइवोर्स हो गया, वो सेपरेशन में रह रही हैं। फिर उसका क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चों की जो है इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पे जो असर पड़ता है। तो इन सब के लिए सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आज हम यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, तो आज हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं सॉल्यूशंस की बात। अब मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूंगा 10 तरीके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे अभी रिया मैडम ने बहुत सारे स्ट्रेस के तरीके बताए, कुछ लोगों ने ऑडियंस में भी बहुत सारे तरीके बताए कि आप ये ठंडा पानी पियो या चॉकलेट खाओ वगैरह वगैरह। तो ऐसे साथियों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ 100 तरीके भी हो सकते हैं, 1000 तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं जो है सिर्फ 10 तरीके की बात करूंगा। और ये 10 तरीके की क्यों बात करूंगा कि कहीं ना कहीं ये 10 तरीकों को, ऐसा नहीं है कि वो 10 तरीके मैं आज अपना रहा हूं, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 30 years ये कहीं ना किसी मोड पे ये मैंने जो है अप्लाई किए हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि ये सभी तरीके मैं अपनी लाइफ में अपनाऊं, सारे के सारे जो है। तो कोशिश है कि आपने भी कोशिश करनी है। एक तरीका ही आप अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो हो सकता है कि आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दे। तो आइए ये बात करते हैं, ये तरीके क्या हैं। पहला है कि अपना पास्ट को डिलीट कर दीजिए। डिलीट द पास्ट मीन्स कि आप भूल जाइए कि आप कहाँ थे, कहाँ हैं। बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास्ट में, नेगेटिव पास्ट में बहुत सारी चीजें हुई होती हैं। हो सकता है जब हम 4 साल के थे, 8 साल के थे, हो सकता है स्कूल में कुछ हुआ हो सकता है हमारी फैमिली में कुछ हुआ हो। तो वो जो था एक इवेंट था, लेकिन उसको हम प्रोसेस बना के आज तक हम माइंड में लिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम ये भी कोशिश करने से होगा, और अगर आप कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। डिपेंड करता है, इसका बेस्ट तरीका है कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर उसके बारे में सोचे कि मुझे कहाँ जाना है। जब हम फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं तो तब हम जो है उसका सोचते हैं। तो डिलीट, अपने पास्ट को हमने जो है डिलीट करना है। अब डिलीट पास्ट कैसे करना है, एक जस्ट आप तस्वीर देख रहे हैं कि मंकीज को कैसे पकड़ा जाता है। मंकीज को जब पकड़ा जाता है तो एक जार में एक बनाना या केला रख दिया जाता है, और जैसे ही वो केले के लिए जाता है तो वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। और जैसे ही वो मुट्ठी बंद कर लेता है, अब उसके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि वो केले को छोड़ दे, और केले को अगर छोड़ देता है तो वो आजाद हो जाएगा, लेकिन वो केले को छोड़ता नहीं है। और केले को छोड़ता नहीं है तो वो फिर पकड़ा जाता है और वो जो है बंदी बना लिया जाता है। उसी तरह हमारा जो पास्ट है, हम वो पास्ट हमारा केले की तरह है। अगर हम अपने पास्ट को ऐसे ही जकड़े रहेंगे, मुट्ठी बंद करके जकड़े रहेंगे, तो हम जो है आगे मूव नहीं कर पाएंगे। हम अपना स्ट्रेस लेवल, तनाव जो है हमारा बढ़ता ही जाएगा। हमें क्या सोचना है कि हमें अपने केले को छोड़ना है, यानी कि हमने जो है अपने नेगेटिव पास्ट को छोड़ देना है। तो ये पहला तरीका जो है आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी आपके माइंड में पास्ट नेगेटिव आए तो सबसे पहले इस केले को और ये बंदर को आप याद कीजिए कि मुझे वो केला छोड़ना। और उसका एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप एक अपनी किताब बनाएं जिसमें आप सोचे कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, राइट। दूसरी, आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी है जिसको हम बोलते हैं, आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करते ही आप
ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। वो हो सकता है कि आपका बॉस हो, आपका कलीग हो, आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स इन लॉ हो, आपका फ्रेंड्स हो, नेबर हो, रिलेटिव हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो, उसको आप इमेजिन कीजिए जो सबसे ज्यादा आपको इरिटेट करता है। अगर ऐसा पर्सन आपके माइंड में एक आ गया है जो सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, तो अपनी आंखें खोलिए और अब आपने क्या करना है कि अगले 21 दिन तक उस पर्सन को आपने कॉम्प्लीमेंट देना है। कॉम्प्लीमेंट देना मीन्स गुड कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना। ऐसा भी नहीं है कि उसने अगर शर्ट भद्दी सी पहनी हो तो आप कहें जी वाह वाह क्या अच्छी शर्ट पहनी हुई है। नो, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना। और आप कहेंगे कि मेरे पास तो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देने के लिए है ही नहीं है, लेकिन आपको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक में कमियां होती हैं, लेकिन हम कमियां पहले देखते हैं, हम अच्छाइयां देखते ही नहीं। तो अगर हम अच्छाई ढूंढने में कोशिश करेंगे तो हमें अच्छाई मिल जाएगी। बुरे से बुरा व्यक्ति भी मुझे सिखा सकता है। बुरे से बुरा व्यक्ति मुझे क्या सिखा सकता है कि मैं उसकी तरह बुरा व्यक्ति नहीं बनूंगा। तो वो पर्सन को अगर आपने 21 दिन तक अगर आपने उसको जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दिया, तो मेरा वादा है आपसे कि आपके उसके साथ संबंध बेहतर होंगे। वो 10% होंगे, 20% होंगे, 50% होंगे, 80% होंगे। वो कितने बेहतर होंगे वो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि आपके कितने बेहतर हुए। लेकिन ये शर्तिया है कि आपके उसके साथ संबंध अच्छे होंगे। तीसरा हम जो है बात करते हैं कि अगर हमने अपना तनाव दूर करना है तो सबसे पहले हम अपने आप से प्यार करें। मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे धरती पे किस लिए आना था, मैं आया ही क्यों, मुझे ही सारे लोग ऐसे क्यों टकरते हैं जो मुझे तनाव देते हैं, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरा ऑफिस ठीक नहीं है, मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपने आप से प्यार करना। तो अपने आप से प्यार करने का क्या तरीका है, जस्ट ये सोचना है कि जब एक प्याले को इमेजिन कीजिए, वो प्याला आपका जब है, जब आपके प्याले में अगर पूरा का पूरा प्याला पानी से भरा हुआ है तो वो छलकेगा। तो जब मैं अपने आप से प्यार इतना कर रहा हूं कि मेरा प्याला पूरा भरा हुआ है तो वो छलकेगा, और जब छलकेगा तो वो दूसरों को भी प्यार देगा। और कहाँ छलकेगा? सबसे पहले मेरे फैमिली में वो छलकेगा, फिर मेरे ऑफिस में छलकेगा, फिर मेरे परिवार में छलकेगा, फिर मेरे रिश्तेदारों में छलकेगा, फिर मेरे सिटी में छलकेगा, फिर मेरे स्टेट में छलकेगा, और फिर मेरे पूरे देश में छलकेगा। तो अपने आप से सबसे ज्यादा हमने पहले प्यार करेंगे। तो शुरुआत कहां से होती है? मैं अपने आप से, मैं जैसी भी कंडीशन हूं मैं अपने आप को प्यार करूं। आइए चौथा एक तरीका देखते हैं कि हम अपनी लाइफ को, अब हमने डिलीट कर लिया, अपने पास्ट को डिलीट कर लिया, अपने आप को प्यार करना शुरू कर दिया, एनकरेजिंग एटीट्यूड रख लिया। अब हमें क्या करना है? अपने डिजाइन योर लाइफ नाउ। अपनी लाइफ को हमने डिजाइन करना है। आप सोचेंगे कि अपने लाइफ को कभी डिजाइन किया? आप जहां जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, आज ये वेबिनार सुन रहे हैं, उस चेयर को डिजाइन होने में कुछ समय लगा? जिस घर में आप बैठे हुए हैं उस घर को डिजाइन होने में कुछ समय लगा? कितना समय लगा होगा? तो ये सब, अब एक घर को डिजाइन करने में ही इतना समय लग जाता है, क्या हमने अपनी लाइफ को कभी डिजाइन किया कि हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? उस बारे में कभी हमने सोचा? तो अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ कैसी हो, वो बोलते हैं ना कि अगर मेरी जितने भी फैक्ट्स डोंट काउंट, इफ द ड्रीम इज बिग इनफ देन फैक्ट्स डोंट काउंट। आज आपने ये भी देखा होगा कि एक गरीब घर का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बना हुआ है, एक गरीब बच्चा भी एक फिल्म स्टार बना हुआ है, एक गरीब बच्चा भी अपने सपनों को सच कर सकता है। लेकिन पहले आपने डिजाइन तो करो, कैसी लाइफ आपको चाहिए उसको डिजाइन कीजिए, और जैसे जैसे वो लिखेंगे उसमें से फिर आप अट्रैक्ट करेंगे ऐसे लोगों को जो आपको जो है इसमें मदद करेंगे।
अगर मेरे आसपास दोस्त नेगेटिव हैं तो मैं नेगेटिव अट्रैक्ट करता हूं, अगर मेरे दोस्त पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं अंदर से खुद पॉजिटिव हूं तो मुझे आपस में सभी लोग पॉजिटिव नजर आएंगे। अगला एक तरीका तनाव दूर करने का है कि फोकस ऑन अदर्स। आप कोई भी अपनी ग्रुप फोटोग्राफ देखिए, ग्रुप फोटोग्राफ में सबसे पहले आपका ध्यान कहां जाता है? अपनी फोटो पे जाता है। मैं भी जब ग्रुप फोटो देखता हूं तो सबसे पहले मेरा ध्यान अपनी फोटो पे जाता है। मैं थोड़ा जूम करके देखता हूं, और जैसे ही मैं उसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो अगर वो मुझे पसंद नहीं है मैं फटाफट डिलीट मार देता हूं। बाकियों की मैंने फोटो देखी नहीं, तो मेरा ध्यान कहाँ था? सिर्फ अपने में था। और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हर एक व्यक्ति जो है अपने में 10,000 गुना इंटरेस्टेड रहता है बनस्पत के दूसरे लोगों के। लेकिन जब सभी ऐसे होते हैं तो मुझे अपना तनाव दूर करने के लिए क्या करना होगा? तनाव दूर करने के लिए मुझे फोकस बाकियों पे करना होगा। जब मैं दूसरों पे फोकस करता हूं तो तब जो है मेरा तनाव जो है कितना दूर होगा? 10% से 100% तक तनाव दूर हो सकता है। जब आप दूसरे की सोचते हैं कि उसकी क्या कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों में, तो कई बार मैं ये कहता हूं कि जब मैं दूसरों पे फोकस करूं तो मैं सेल्फिश हूं। जब हम रेड लाइट पे अगर किसी को 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए देते हैं तो कई बार इसलिए नहीं देते कि उससे उसका भला होगा, इससे हमें मन की शांति मिलती है, इसलिए हम उसे 2, 4, 5, 10 रुपए दे देते हैं। तो अब हमने फोकस जैसे ही दूसरों पे किया तो हमारा जो है वो तनाव कम हो गया। आइए एक और देखते हैं। लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज जनरोसिटी। इफ यू वांट मोर, गिव मोर। अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। आप कहेंगे मेरे पास तो है नहीं देने के लिए। है आपके पास। अगर मैं ये कहूं कि नहीं मेरे पास नहीं है देने के लिए, नहीं है आपके पास। और सबसे बड़ी चीज जो आपके पास है, आपके पास है लोगों को स्माइल देने के लिए। स्माइल में तो कोई पैसे नहीं लगते। जब मैं किसी को स्माइल देता हूं और मुस्कुराहट से उससे बात करता हूं, मेरा आधा तनाव दूर हो जाता है। तो मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं देना शुरू करूं। आइए इसमें जो है लॉ ऑफ प्रोस्पेरिटी के ऊपर, और एक है आपका स्थित प्रज्ञ। जो एक लॉ है जो बोलता है स्थित प्रज्ञ, ये क्या है? आपका भगवत गीता में अध्याय 2 में 54वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। वो स्थित प्रज्ञ क्या है, इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें ही 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा कि स्थित प्रज्ञ क्या है। कि जब मुझे खुशी है तो खुशी में बहुत ज्यादा खुश ना हो जाऊं, और दुख है तो दुख में मैं बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाऊं। मैं एक बैलेंस बना के रखूं, और मैं स्थित प्रज्ञ हूं। और वो स्थित प्रज्ञ होने के लिए ये आपको एक, मैं जस्ट एक पैराबल, एक स्टोरी छोटी सी बताता हूं कि हेवन एंड हेल, ये जेन पैराबल है। कि अब ये स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है, कि अब इसमें से एक मैं कहानी के माध्यम से ये आपको स्थित प्रज्ञ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हैं, एक समुराई देख रहे हैं जिसके हाथ में तलवार है, और एक जो जेन है वो मेडिटेशन में लगा हुआ। तो जब ये समुराई उसके पास जो मेडिटेशन में लगा हुआ है, तो इमीडिएटली उसके पास जो है तलवार निकाल के बोलता है कि मुझे डिफरेंस बताओ, कि डिफरेंस हेवन और हेल में क्या फर्क है, स्वर्ग और नरक में क्या डिफरेंस है। तो जैन जो मेडिटेशन में लगा हुआ था उसने गुस्से से कहा कि आप कौन होते हो मेरे से पूछने वाले, मैं नहीं बताता आपको। आपको 2, 4 बातें और इधर उधर की बताई कि आप को नहीं बताऊंगा मैं। तो समुराई को गुस्सा हो गया, तो उसने इमीडिएटली अपनी तलवार निकाली, और जैसे ही उसने तलवार निकाली और जैन को मारने के लिए दौड़ा, तब उस जैन प्रीस्ट ने उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला यही हेल है, यही नरक है। और जब वो समुराई समझ पाया कि आंखों में यही नरक है, तो तब उसने हाथ जोड़ के उसके माफी मांगी और उसके कदमों में गिरा, और तब उसने जैन ने कहा कि हाँ जी यही स्वर्ग है। तो वही है कि जब हमें कोई गुस्सा, हमें लगता है कि लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं, मैं गुस्सा नहीं करता, लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं। उसने गुस्सा करने वाला मैं खुद हूं। तो मैं कितना अपने आप को स्थित प्रज्ञ
हूं तो इसकी भी कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सुना ओवरनाइट तो ये हो जाएगा, इसके लिए कोशिश करनी है। और कोशिश करने के लिए क्या करना होगा कि उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो कम्युनिटी आपको डेली बेसिस पे इस तरह का आपको माहौल दे। अब इस तरह का माहौल कैसे है? अगर आपका 5 लोग जो बहुत ही आपके क्लोज हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या आपके कोई भी 5 लोग हैं, आप 5 लोगों की डिटेल्स मुझे बताइए, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा कि कैसा है। तो आपका एनवायरनमेंट कैसा है? तो अगर मुझे अपनी डिजाइन करनी है लाइफ को, तो मुझे अपना एनवायरनमेंट जो है उसको जो है कवच डालना पड़ेगा, अपने आप को इम्यून करना होगा बाकी सब चीजों से। आइए एक और तरीका देखते हैं कि तनाव को दूर करने का। अज्यूम द बेस्ट। अब अज्यूम द बेस्ट का मतलब क्या है? कि मैंने अपने आप को जवाब देना है कि मैं माइंड में कि मैं अज्यूम करूंगा बेस्ट। अज्यूम कैसे किया जा सकता है? आपने किसी अपने दोस्त को फोन लगाया और बहुत जरूरी बात करनी थी, उसने फोन नहीं उठाया। आपने आधे घंटे बाद फिर उसे फोन लगाया, उसने फिर फोन नहीं उठाया। 1 घंटे बाद फिर फोन किया, उसने फिर फोन नहीं उठाया। और 3-4 घंटे बाद फिर जब आप उसको फोन करते हैं तो इमीडिएटली हम क्या है कि उसको भड़क पड़ते हैं कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, ये वो पता नहीं क्या क्या हम बोल देते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को ये बोलते हैं अज्यूम द बेस्ट, उसे कोई जरूरी काम आ गया होगा, उसे हो सकता है कि उसको किसी चिंता में हो सकता है घर में कुछ दिक्कत आ गई हो सकता है बच्चा बीमार हो सकता है खुद बीमार हो सकता है कि घर में ऐसी परेशानी हो जिस वजह से वो फोन नहीं उठा सकता, हो सकता है वो बॉस के सामने हो। ऐसे 100 सिचुएशंस में अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन मैं एक ही चीज करता हूं कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। आप अज्यूम द बेस्ट करते हैं, आप अगर उसको शाम को तक 17 बार फोन करते हैं फिर भी नहीं उठाता, अगले दिन करते हैं फिर भी नहीं उठाता, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आप अज्यूम द बेस्ट करते हैं। तो इसको अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा तनाव जो है वो कम होगा। कितना कम होगा, कितना हुआ, ये आप मुझे जो है यहां हम बताएंगे कि कितना हुआ। आप डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं कि कैसे कम हुआ। आइए एक और हम आदत अपने आप में डालेंगे, लेट इट गो। ये लेट इट गो की हैबिट जो है आपको बहुत आगे ले जाएगी। लेट इट गो का मतलब है जाने दो। आप कहेंगे कैसे जाने दो? जाने दो, जाने दो मीन्स वही वापस वही बात आ गई कि मुझे ये जाने दो। कि अब आपने ये सोचना, लेट इट गो को प्रैक्टिस करने के लिए क्या है कि अगर मुझे लाइफ में कोई चीज चाहिए, अगर मुझे मधुर संबंध चाहिए, तो अगर मुझे मधुर संबंध चाहिए तो क्या मैं इस बात को लेट इट गो कर सकता हूं? वो चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे पड़ोसी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरा बॉस हो, चाहे कलीग हो, कोई भी हो। अगर मुझे उसमें ये क्लैरिटी है कि मैं रिश्ते नहीं खत्म या बिगाड़ना नहीं चाहता, तो लेट इट गो की हैबिट डालनी है। आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान नहीं, कोई भी चीज आसान नहीं। क्या साइकिल चलाना आसान है? साइकिल इनिशियली जब हम सीखते हैं साइकिल, आई एम श्योर कि आप में से सब लोगों ने जब साइकिल चलाई होगी तो गिरे होंगे। लेकिन साइकिल चलाते हुए गिरते 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 हमने आज की डेट में साइकिल चलाना सीख लिया, और अब हम कोशिश करके भी नहीं गिर पाते। आप अगर कोशिश करेंगे तब भी नहीं गिरेंगे साइकिल से। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है बैलेंस बनाना। तो उसी तरह लेट इट गो की अगर आप हैबिट एक डेवलप आप में हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि 95% लोगों से आप आगे बढ़ गए, अगर आप ये लेट इट गो करना शुरू करते। तो ये तनाव कम करने का आपका एक जरिया है कि आपने तनाव कम हो। एक और तरीका है। देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे तरीके जो हैं, इसमें से आप कोई भी एक तरीका अच्छा लगे आप अप्लाई कीजिए। ये वाले तरीके सारे के सारे मैं अप्लाई करता हूं, समय समय पर मैंने किए हैं, हाँ किए हैं। इसमें से क्या मेरी जिंदगी में बदलाव आया? 180 डिग्री चेंज आया। जो लोग मुझे जानते हैं
जो लोग मुझे 20-30 साल पहले जानते हैं वो शायद विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ जी मेरे में ये बदलाव आया। वो क्या आया है? ग्रेटिट्यूड। क्या आभार है हमें। मैं जैसी भी दशा में हूं, मेरे सर पर बहुत सारे लोन्स हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, अच्छा बीवी नहीं है, अच्छा हस्बैंड नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं हैं, अच्छा पड़ोस नहीं है, लेकिन कभी हमने सोचा कि क्या है हमारे पास? जब आप ये सोचते हैं, अभी भी आप सबका, हमारे सबका दिल धड़क रहा है। क्या इसके लिए हमें कुछ कोशिश की कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमारा दिल धड़क रहा है। तो दिल धड़क रहा है तो क्या हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं? हम सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या इसके लिए हम कुछ कोशिश कर रहे हैं? लेकिन फिर भी हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक सुप्रीम पावर है, एक यूनिवर्स है जो हमें जो है ये हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए ना। हमारी दोनों आंखें सलामत हैं। अब अगर हम देख सकते हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाऊं। आज ही अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल बताऊं। आप ग्रेटिट्यूड में क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो अपने आप से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे बहुत आभार व्यक्त है कि मेरी 2 आंखें हैं, सही सलामत है, मैं देख सकता हूँ। मेरे 2 हाथ हैं और उसमें जो है हाथ मेरे अच्छे से काम कर सकते हैं। मेरे 2 पैर हैं, मैं चल सकता हूँ। मेरा एक दिमाग है जो मैं अच्छा से सोच सकता हूँ। मैं सुंदरता, अब सुंदरता क्या है? मेरी अंदरूनी सुंदरता, बाहरी सुंदरता सुंदरता नहीं है, जबकि मेरी अंदरूनी सुंदरता है। तो अपनी बॉडी को लेके आप ग्रेटिट्यूड जर्नल, एक दिन का हो गया, 10 चीजें लिख ली, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आ जाओ, परिवार पे आ जाओ। मेरी एक अच्छी पत्नी है। आप कहेंगे नहीं है अच्छी, नहीं है अच्छी, लेकिन कोई ना कोई तो अच्छाई होगी, तो ढूंढिए उस अच्छाई को। मेरे बच्चे हैं। अब कई लोग कहेंगे कि हाँ जी लोगों के बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे हैं तो उनसे परेशान हैं। तो मेरे बच्चे हैं ना। बच्चे, जिसके बच्चे नहीं होते उनको कितनी परेशानी होती है, तो मेरे पास बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। आज की डेट में बच्चे जो हैं वो और ज्यादा समझदार हैं। मैं बच्चों से सीखता हूं बहुत सारी बातें, आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, जो उनको अपॉर्चुनिटीज उनके पास हैं, वो बहुत सारी हैं। तो ग्रेटिट्यूड होने के आपके 101 तरीके नहीं है, 1000 तरीके हैं जिसकी वजह से मैं ग्रेटिट्यूड फील कर सकता हूं। हम आकाश है, धरती है, पाताल है, ये वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज हैं जिसके लिए हम जो है ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। और जब हम ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करते हैं, तो हमारा तनाव जो है उसमें दूर होता है। ये सब जो है तरीके हमने जो है डिस्कस किए मैंने। अब ये ऐसा नहीं है कि ये वाले आपके काम कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे, उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको एक प्रोग्राम में आना पड़ेगा। वो क्या है प्रोग्राम? वो 30 डेज का प्रोग्राम है कि ये वाली, आज मैंने अपने तनाव के लिए नॉलेज तो ले ली, नॉलेज ले ली, कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज लेने के बाद में ये आपको अवेयरनेस होगी। लेकिन नॉलेज को अप्लाई कैसे किया जाए, उसको अप्लाई स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाए, वो नॉलेज देने के लिए एक आपका एक फोरम है जो कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है। तो वो फोरम क्या है? उस फोरम ने जो है मेरे और मेरे परिवार की लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदली। अगर आप बदलना चाहते हैं तो हमें आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। तो हम आपको जो है, ऐसा नहीं है कि आपको इस पे हमारे सीरीज ऑफ वेबिनार्स होंगे, और सीरीज ऑफ वेबिनार्स पे धीरे 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 धीरे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो केले में सुई कैसे चली जाती रही, तो वो मैं बता नहीं सकता। ये तो मेरी धर्मपत्नी ही बता सकती है कि मेरे में कितना 180 डिग्री चेंज आया है या नहीं आया है। मेरे बच्चे बता सकते हैं कि मेरे में कितना चेंज आया, कितना बदलाव आया। तो ये बदलाव जब आता है तो तब आप, आज की डेट में रिसर्च कहती है, ये रिसर्च क्या कहती है? वो रिसर्च कहती है कि 70% आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, वो है आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस के ऊपर।
आपने आईआईटी से किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, या आपने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, पीएचडी की हुई है, उसका इतना रोल नहीं है। उसका सिर्फ रोल 30% ही है। 70% रोल है कि हमारे यार रोटी में से ध्यान नहीं जाता। तो ये इंटरपर्सनल, तो ये मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो ओवर टू मिस्टर एमपी गर्ग सर। Grover ji, thank you so much for such a wonderful session.